Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group Public Schools. Students, in your class nowadays we are doing fourth chapter in the book Hornbill. The name of the chapter is Landscape of the Soul by Nathalie Traubery. So, students, in this lesson up to now you have got one video, and in that video we have learned some very basic points that were essential to understand the chapter Landscape of the Soul. As we all know that in this lesson, the writer compares the Chinese view of art with the European view of art. Both the view regarding the art, Chinese and European, both are compared in very minor way. Both of these viewpoints are totally different. The Chinese give freedom to the viewer, while the European give him no such freedom and expect him to develop a particular viewpoint. The Chinese painter wants active involvement of the onlooker because his landscape is a spiritual landscape, while the Western or European painter, on the other hand, wants the viewer to see his landscape as he sees it. In the first part of the chapter, we have come to understand a story regarding the great painter Wu Daoji, who was a Chinese painter. Wu Daoji lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzang to decorate the palace wall. The master painter had hidden the work behind a screen. Only the emperor would see it and admire the wonderful scene, showing forests, mountains, waterfalls, etc. One day, the painter told the emperor about a cave where a spirit lived. The painter then clapped his hands. The entrance to the cave opened. He entered the cave and invited the emperor to come inside. But before the emperor could enter, the entrance closed behind the painter. While the astonished emperor stood there, the painting disappeared along with the painter. Not a trace was left of the painter and the painting. So, the stories like the story of Wu Daoji are very common in Chinese classical education. ऐसी वू दाओजी जैसी कहानियाँ जो हैं चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन में वेरी कॉमन है. Even books of Confucius and Zhuangzi are full of such stories. Confucius and Zhuangzi की जो बुक्स हैं उनमें भी ऐसी ही कहानियाँ भरी पड़ी हैं. They are quite revealing and give proper guidance to students. They reveal the spirit of art. ये जो कहानियाँ हैं ये आर्ट की स्पिरिट को रिवील करती हैं. एक और कहानी है. There is another story of a painter. He would not paint the eye of a dragon lest it should come out of the painting and fly. So these are very common in Chinese education, Chinese classical education. So students, in the last class we had gone to up to this point. Today we are to proceed. So open your book on page number 35.
In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metsys fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession, so Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. So there is one more story that is from the 15th century. ये स्टोरी 15th सेंचुरी से बिलोंग करती है। 15th सेंचुरी पे एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मिट्सिस। दैट मास्टर ब्लैकस्मिथ हैपेंड टू फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। क्विंटन मिट्सिस नामक इस मास्टर ब्लैकस्मिथ को एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया। Now, the father would not accept his son-in-law in such a profession, since Quentin Metsys was a blacksmith, and the girl with whom he fell in love was a painter's daughter. So, the father was not going to accept a son-in-law. जो फादर है वो ऐसे सन लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था जो कि ऐसे प्रोफेशन में हो, मतलब कि जो कि ब्लैकस्मिथ हो। तो उसने इस कारण से उसके जो है लव को एंड मैरिज को नकारा कि वो एक ब्लैकस्मिथ है। तो क्या किया? क्विंटन मिट्सिस sneaked into the painter's studio. क्विंटन ने क्या किया? क्विंटन छिप के पेंटर की स्टूडियो में गया एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और पेंटर के लेटेस्ट पैनल पे एक फ्लाई पेंट कर दिया। एंड दैट फ्लाई वॉज पेंटेड विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। वो जो है इतने डेलिकेट रियलिज्म के साथ पेंट किया गया था दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। जो मास्टर था उसने जो है ट्राई किया स्वेट अवे करने का, इसके पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ। उसने सोचा कि वो उसको स्वेट अवे कर दे, लेकिन Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. जैसे ही वो रियलाइज़ किया, वो समझ पाया कि जो है ये काम क्विंटन का है, उसने तुरंत क्विंटन को अपने स्टूडियो में एज अप्रेंटाइज एडमिट कर लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और उसने अपने बिलीवेड से शादी किया क्विंटन ने, और अपने समय के सबसे फेमस पेंटर्स में से एक बना। अब ये जो दो कहानियाँ हैं, दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट what each form of art is trying to achieve। ये जो दोनों कहानियाँ हैं वो इलस्ट्रेट करती हैं कि दोनों तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो क्या अचीव करने का प्रयास कर रही हैं। दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। एक तरफ चाइनीज़ फॉर्म ऑफ आर्ट है, उस तरफ जो है आपका यूरोपियन फॉर्म ऑफ आर्ट है। जो ये यूरोपियन फॉर्म ऑफ आर्ट है दैट इज़ अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। ये एक इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्रिएट करने का प्रयास करता है। यूरोपियंस की जो पेंटिंग है, यूरोपियन पेंटिंग है, ये पेंटिंग को इस तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं
कि लोगों को हो जाए कि वो पेंटिंग नहीं देख रहे हैं बल्कि ये वही लैंडस्केप देख रहे हैं। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, ये आपकी यूरोपियन पेंटिंग का जो है मोटो होता है, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। जबकि एशियन पेंटिंग में आप इनर लाइफ का एसेंस खोजते हैं। आप पाएंगे इनकी पेंटिंग में एसेंस ऑफ इनर लाइफ और स्पिरिट पाने का प्रयास करें। इन द चाइनीज स्टोरी, जो चाइनीज स्टोरी थी जो कि आपने वू दाओजी के बारे में अभी पढ़ा इन द लास्ट क्लास। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज स्टोरी में आपने देखा कि जो एम्परर था, एम्परर ने वू दाओजी को कमीशन किया, इसको ऑर्डर किया कि वो एक पेंटिंग बनाए उसके पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए। और जब पेंटिंग बनके तैयार हुई तो वो उस पेंटिंग के आउटर अपीयरेंस को अप्रिशिएट भी करता है। आउटर अपीयरेंस में आप लोगों ने देखा, और उसमें माउंटेन था, फॉरेस्ट था, वाटरफॉल था, उन सब को क्लाउड्स फ्लोट कर रहे थे इमेंस स्काई में, हिली पाथ्स पे मैन चढ़ रहे थे, बर्ड्स उड़ रही थी, इन सब को वो एप्रिसिएट करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट कहता है कि मेरी इस क्रिएशन का मेन मोटो ये जो आउटर अपीयरेंस है उसको दिखाना नहीं है। वो रिवील करता है कि उसके वर्क का ट्रू मीनिंग क्या है। देखो, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। एक एम्परर जो होता है वो जिस क्षेत्र को उसने कॉन्कर किया है, जिस क्षेत्र को उसने जीता है, उस पे रूल कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन इनर लाइफ का, इनर जो आंतरिक चीज़ें हैं, जो सोल की चीज़ें हैं, जो आत्मा की चीज़ें हैं, उस चीज़ को केवल आर्टिस्ट जानता है। ओके, द वे विद इन इज नोन टू द आर्टिस्ट ओनली। इसीलिए वू दाओजी ने क्या कहा, लेट मी शो द वे। इन दिस वे यू आर गोइंग टू गेट दैट द आर्टिस्ट इज टर्निंग टू बी द स्पिरिचुअल गुरु। जो आर्टिस्ट है वो स्पिरिचुअल गुरु यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु के रूप में हमारे सामने आ रहा है। वो कहता है लेट मी शो द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और वो दैट मीन्स बोथ द पाथ आर द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। वो जो लेट मी शो द वे है, ये इसका मतलब क्या होता है, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब दोनों होता है, एक तो पाथ भी और एक मेथड भी, तरीका भी, रास्ता भी और तरीका भी। वे मीन बोथ। वे मीन एक तो वे का मतलब होता है रास्ता, पाथ, और वे मतलब मेथड भी। इन दिस वे आई हैव डन दिस, किस तरीके से आपने किया उसको, तो मेथड भी। और जो मिस्टीरियस वर्क्स हैं यूनिवर्स के, उन चीज़ों को भी दिखाता है। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग तो वहाँ से चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल को, वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। और उसका टारगेट क्या होता है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। जो आर्टिस्ट का गोल होता है, जो एक चाइनीज आर्टिस्ट है या जो एशियन आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट का गोल होता है बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। ये जो भौतिक जो चीज़ें हमारी दिखाई दे रही हैं, लौकिक रूप में कैसे दिख रहा है, उससे परे।
A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, हम लोगों ने ये देखा कि एक जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप होता है वो कतई लैंडस्केप का एक्चुअल व्यू क्रिएट करने के मकसद से नहीं बनाया जाता, जबकि यूरोपियन या वेस्टर्न पेंटिंग जो होती है, वेस्टर्न पेंटिंग्स फिगरेटिव होती है, वो एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करने का प्रयास करती है। व्हाइल चाइनीज लैंडस्केप्स आपको एक्चुअल व्यू क्रिएट करने का प्रयास नहीं करते। ये भी हो सकता है कि जो चाइनीज पेंटिंग्स हैं वो थॉट प्रोवोकिंग हो, कॉन्सेप्चुअल हो, वो पेंटिंग्स ऐसी हो जैसा कि लैंडस्केप कहीं अवेलेबल ना हो, किसी एक्चुअल लैंडस्केप को वो रिप्रोड्यूस ना कर रही हो, क्योंकि वहाँ पे जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का मोटो किसी एक्चुअल लैंडस्केप को रिप्रोड्यूस करना नहीं है। इन चाइनीज लैंडस्केप्स यू विल फाइंड आउट दैट द आर्टिस्ट इज नॉट ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस एनी एक्चुअल व्यू, ही इज ट्राइंग टू bring his thoughts, bring his concepts, bring his ideas on the canvas. So that is the main point. That is what the author is trying to explain over here. That a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western फिगरेटिव पेंटिंग्स, जैसा कि जो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स हैं वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as his sight. जो एक यूरोपियन पेंटर है वो चाहता है आपकी आईज को, I mean he wants you, वो आपसे चाहता है कि आप उसकी निगाह को बोरो कर लें और पेंटिंग को देखने के लिए जिस निगाह से उसने पेंटिंग को देखा है उस निगाह से आप उस पेंटिंग को देखें। वो आपकी सिर्फ निगाह को बोरो करना चाहता है, सिर्फ आईज। और आईज से क्या होता है, जो एक्चुअल व्यू है, आप देखिए जिस चीज को उसने उकेरा होगा वो एज इट इज एक्चुअल, आपको एक भी रंच मात्र भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसा वो रियल में लैंडस्केप होगा वैसा ही लैंडस्केप आपको कैनवास पे मिलेगा। ये यूरोपियन पेंटर्स की बात है। दे वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, और जो पर्टिकुलर लैंडस्केप है उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को वैसे ही एक्सपेक्ट करता है कि आप देखो जैसा कि उसने देखा था, क्योंकि जैसा उसने देखा था वैसा ही उसने कैनवास पे उतार दिया है। वो चाहता है कि आपको वही सेंस, वही चीज देखने को मिले जैसा कि उसने देखा था और उसने वहां पे कैनवास पे उतारा फ्रॉम माई स्पेसिफिक एंगल। यस, क्योंकि वो जो चाइनीज जो यूरोपियन पेंटर है वो हर एक एंगल से तो उस लैंडस्केप को नहीं देख पाएगा ना, वो किसी एक एंगल से, किसी स्पेसिफिक एंगल से देखेगा। तो जिस स्पेसिफिक एंगल से उसने उस लैंडस्केप को देखा और कैनवास पर उतारा, वो चाहता है कि आप भी उसी एंगल से, उसी स्पेसिफिक एंगल से उसको देखें और उसको समझने का प्रयास करें। The Chinese painter does not choose a single व्यू पॉइंट, जबकि वहीं पे अगर हम चाइनीज पेंटर की बात करें, चाइनीज पेंटर कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं लेता, नहीं,
हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसकी लैंडस्केप कोई रियल लैंडस्केप नहीं होती, नहीं। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। और यूरोपियन पेंटर की तरह वो ये भी नहीं चाहता कि आप उसी एंगल से उस पेंटिंग को देखने का प्रयास करिए जिस एंगल से उसने लैंडस्केप को देखा था, नहीं। चाइनीज पेंटिंग में आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट से नहीं देखी गई है, ये कोई रियल लैंडस्केप है ही नहीं। आप जिस पॉइंट पे चाहें उस पॉइंट से आप इंटर कर सकते हो और फिर उसी पॉइंट से आप ट्रेवल करना शुरू कर दीजिए। यू कैन ट्रेवल फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट। The artist creates a path for your eyes to travel up and down. It is the artist's work. The artist's art dwells in this fact that he creates a path for your eyes. And following the paths that he has created, you can scroll up and down here and there from any point, and then you can back again. The artist is successful if he is able to make travel by the paths that he has created in the painting. जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की सफलता इस पॉइंट में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी और नॉट? समझने का प्रयास करिए। इन अ लेजरली मूवमेंट मीन्ड आर्टिस्ट जो रास्ता क्रिएट किया है आपकी आंखों के लिए, आप उससे ट्रेवल करिए अप डाउन और फिर वापस आ जाइए अपने लेजरली मूवमेंट में। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. Chinese painting इसीलिए तो एकदम अलग है। So you will find out that it is more suitable when you go on a horizontal scroll. It is even more true in the case of horizontal scroll. Horizontal scroll के केस में ये इवन ज़्यादा ट्रू है, इसमें कि in which the action is slowly opening, जबकि जो एक्शन है वो धीमे धीमे slowly opens one section of the painting, then rolling to it up to move to the other. पहले एक सेक्शन पेंटिंग का एक सेक्शन ओपन होता है, उसके बाद आप रोल करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और ये चीज़ जो होता है इट एड्स वन मोर डायमेंशन, और जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम। इसके बाद एक और डायमेंशन ऐड होता है। After this, one more dimension is added, and that is the dimension of time, जो कि that you will find absent in any other form of painting, जो कि आप किसी other form of painting में नहीं पाएंगे। It also requires the active participation of the viewer. Yes, जो most important point है, ये व्यूअर के एक्टिव पार्टिसिपेशन को रिक्वायर करता है, क्योंकि इट इज द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल टू द पेंटिंग। क्योंकि जो व्यूअर है वो डिसाइड करता है कि पेंटिंग में कितनी स्पेस के साथ वो ट्रेवल करेगा। अब पार्टिसिपेशन एक ऐसा पार्टिसिपेशन which is physical as well as mental. Chinese
पेंटिंग के बीच के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल पार्टिसिपेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन पेंटिंग में आप फिजिकली, आपका फिजिकल पार्टिसिपेशन वहाँ होता है, आप फिजिकली आप उस पेंटिंग को देखते हो, यू व्यू द पेंटिंग फिजिकली बाय योर आइज एंड यू कम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट इन चाइनीज पेंटिंग्स इट इज़ नॉट सो। इन चाइनीज पेंटिंग आपका मेंटल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट टू बोरो हिज आइज, यस, as in the case of यूरोपियन पेंटिंग्स। यूरोपियन पेंटिंग के केस में अलग चीज़ होती है। यूरोपियन पेंटिंग केस में वो जो पेंटर है वो आपके आइज़ को जो है बोरो करना चाहता है, जबकि चाइनीज़ पेंटर आपके आइज़ को नहीं, ही वॉन्ट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके माइंड में एंटर करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, क्योंकि इस केस में जो लैंडस्केप है वो एक इनर लैंडस्केप है, एक स्पिरिचुअल लैंडस्केप है, एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस है। उस आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट उस पेंटिंग में लगा हुआ है। उसने अपने कॉन्सेप्ट को कैनवास पे ड्रॉ करने का प्रयास किया। So students, in today's class we are doing up to here. We shall continue the chapter in the next class. Thank you. Have a nice day.